Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 science and for chapter 4 we are on the topic how are electrons distributed in different orbits or shells, right? So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji. And if you want one-to-one sessions through video chat, right? You can like fill up this form and the team will connect with you, right? So let's see how are electrons distributed in different orbits or shells, right? So this was suggested by Bohr and Bury, ठीक है, distribution of electrons into different orbits of an atom. तो इसके कुछ rules होते हैं, ये बहुत important topic है. Let's understand these rules properly, right? The rules are to write the number of electrons in different energy levels or shells, okay? First is the number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square. ठीक है, n is the orbit number or energy level index जो कि 1 2 3 4 it can be like this. ठीक है, तो maximum number of electrons जैसे हमें n equal to 1 first orbit के लिए देखना है, that is k shell, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 square that is 2. ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट जिसको हम एल शेल भी बोलते हैं उसके लिए हो जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज 8. थर्ड ऑर्बिट और एम शेल विल बी 18. फोर्थ ऑर्बिट और एन शेल विल बी 32 एंड सो ऑन. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in the outermost orbit is 8. Okay, this is the second rule. All right, electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, shells are filled up in a stepwise manner. पहले first orbit fill होगा, फिर second, फिर third and then fourth, right? And atomic structure of first 18 elements we will see, okay, one by one in the next figure, okay. So this is a schematic atomic structure of first 18 elements. Let's see that one by one. First is hydrogen. ठीक है, सेंटर में जो डॉट है देखो सभी एटम्स के अंदर, दैट इज द न्यूक्लियस. ठीक है, सर्कल से शेल्स रिप्रेजेंट किए हैं. तो हाइड्रोजन में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट बनाई और 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया. ओके, हीलियम में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो शेल बनाई और 2 इलेक्ट्रॉन्स डॉट से शो कर दिए. करेक्ट. तो जो हमारी फर्स्ट ऑर्बिट थी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं. तो अगर अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, बाकी जो रिमेनिंग 1 है वो सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा. ठीक है, बेरिलियम में 2 इनसाइड मोस्ट में है, फिर 2 इधर. बोरॉन में एक और आ गया तो इधर फिल हो गया. कार्बन में एक और. तो ये कब तक चलेगा? हमने रूल देखा था 8 हो सकते हैं मैक्सिमम आउटर मोस्ट में. ठीक है, तो यहाँ 4 हो गए, यहाँ 5 6 7 8. ठीक है, 8 के बाद अब एक और अगर आता है तो न्यू शेल बनाएंगे, थर्ड शेल में जाएगा वो. ठीक है, देन 2 इन थर्ड शेल, 3 इन थर्ड शेल, 4 इन थर्ड शेल, 5 6 7 and 8. Like this it goes on. Correct. So this is also a very important table. So this is composition of atoms of the first 18 elements with electron distribution in various shells. Okay, अभी हमने जो structure देखा था उसे हम table form में देख रहे हैं. जैसे हम discuss करते हैं name of element. Okay, hydrogen, helium, lithium, up till argon we are taking. These are the symbols, इनके atomic numbers. ठीक है, number of protons. So number of protons, see, they are equal to the number of the atomic number, right? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, सेम सेम ही आएगा यहाँ पे. दीज आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, न्यूट्रॉन्स डिफर कर रहे हैं, आप देख सकते हो. हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स, हीलियम हैज 2 न्यूट्रॉन्स, लिथियम हैज 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है. करेक्ट. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. के एलिमेंट शेल्स, पहले के शेल फिल होगा 1. ठीक है, 1 था तो 1. 2 है तो 2 आर फिल्ड है. के शेल में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं. 3 है तो इधर 2 आएंगे, एल शेल में 1 चला जाएगा एंड सो. लास्ट कॉलम वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है? देखो, जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि क्या वैलेंसी होगी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है के. ठीक है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. तो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 हो जाएगी. राइट.
इसमें K में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और ये फिल्ड है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये कम या ज्यादा नहीं है, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 हो जाएगी। करेक्ट। इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो वैलेंसी विल बी 1 हेयर। राइट। तो ये सब इनकी वैलेंसीज हैं। यहाँ पे देखो सेम रूल चल रहा है, आउटर मोस्ट शेल में हमारे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही हमारी वैलेंसी जा रही है। तो 4 तक तो इस तरह चलता है। राइट। 4 के बाद जैसे 5 आ गया तो 5 के केस में वैलेंसी होगी 8 माइनस 5 दैट इज 3। राइट। 6 के केस में होगी 8 माइनस 6 दैट इज 2 एंड सो ऑन। ठीक है। जब 8 है आउटर मोस्ट शेल में तो कोई फिल्ड है वो, तो 0 वैलेंसी। करेक्ट। इसमें फिर आउटर मोस्ट शेल M हो गया, यहाँ तक एज इट इज चलेगी वैलेंसी 1 2 3 4, और 5 से 8 तक हमारा वही हो जाएगा 8 माइनस, लाइक वी कैन डू 5 8 माइनस 6 8 माइनस 7। ये हमारा फॉस्फोरस जो होता है ये दो वैलेंसीज शो करता है 3 and 5। दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल केस। करेक्ट। So this is all regarding the electron distribution in shells, right? So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned for more updates. Thanks for watching the video.